Welcome to my YouTube channel. Myself Pallavi. I'm from Ludhiana. I have done my BCom from Punjab University, and I am also pursuing CA and given my last grip of CA finals in last month. And I have already cleared my CA final group 2 and also got an exemption in SFM. I have just left with 3 exams of CA, and I have done my articleship from Ashish Agarwal and Company. There I got a practical exposure of income tax returns, statutory audits, bank audits, stock audits, and done my industrial training from JTech Private Limited, Gurgaon. There I have done my GST and customs and all the ITT related work. Okay. So here I am going to teach you a GST subject because it is my favorite, one of my favorite subject actually. So and I am going to join an academy because teaching is my passion. So I just love to teach. I have teaching experience of 6 to 7 years. I have taught many classes and. I'm also an online tutor at Philo, GuruQ, Chegg, and Vedantu. Also, I have attempted many questions at Chegg India. For accounting and financials, and that's it. Okay, so here we will divide the GST subject in 3 categories. First is A, B, C. This category is being divided on the basis of my exams and I have done ABC analysis when I was preparing for my exams, and it is being done on the basis of what chapter is of more importance on the basis of weightage in a particular exam. Okay, so in A category we were having ITC and valuation, exemption, reverse charge mechanism, refunds, offenses, penalties, demand and recovery. We will give 7 hours each to each topic. Okay, and then B category, it is supply, composition, place of supply, registration, e-way bill, appeals and division, payment of taxes, advance and ruling. And we are going to give 4 hours each. It is enough. Okay. And the C category is GST introduction, the first chapter and time of supply, tax invoice returns, assessment and audits, and job work liabilities, etc. Right. So we will give 2 hours each to each. Okay. Right. So by this, we will cover our syllabus in 97 hours. So this is not a rigid one. It is a flexible and it is easy to convert to cover it in 100 hours. Not an issue. Okay. So yeah. So today I am going to start with the first topic of A category is that ITC. ITC, yeah, input tax credit. Basically, what is input tax credit, right? So we will start with input tax credit. So firstly, I will tell you about input ITC. Like, ठीक है, ITC is basically input tax credit, right? So GST पढ़ने का ना basically होता क्या है? This is a bare language, ठीक है, which is being given by the act or law, right? So but हम इसको ना वर्ड्स को तोड़ तोड़ के एक एक डेफिनेशन को पढ़ेंगे, राइट? सो जैसे कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक कि आईटीसी है, लाइक आईटीसी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट? तो अब इसमें इनपुट टैक्स की अलग डेफिनेशन है, व्हाट इज इनपुट टैक्स, देन इनपुट टैक्स में से निकला इनपुट, तो उसको पढ़ेंगे. तो बेसिक इज इनपुट. सो स्टार्ट विद इनपुट. लेट्स स्टार्ट विद इनपुट. सो व्हाट इज इनपुट? इनपुट इज बेसिकली हम जब जनरल लैंग्वेज में भी बात करते हैं तो हम जो भी इनपुट्स मीन्स लाइक कि जो भी चीजें हम यूज करते हैं, लाइक all we were commerce students, so we will be knowing that what is input, whatever is being used, but इसकी special quality क्या है, that it is being used for the furtherance of business, right? So इफ इनपुट्स तो देखो पर्सनल प्रोडक्ट में भी यूज होते हैं, राइट? तो बट अगर वो ही इनपुट इनपुट माना जाएगा जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होंगे, ठीक है? तो हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं. मींस गुड्स other than capital goods, ठीक है, used or intended to be used by supplier in the course of business, ठीक है? तो मतलब बेसिकली फुल चैप्टर में मतलब फुल जीएसटी में ही हम जीएसटी को 3 कैटेगरीज बेसिकली में डिवाइड करते हैं. इनपुट्स, इनपुट गुड्स, एंड देन इनपुट ऑन सर्विसेज, एंड देन कैपिटल गुड्स. ओके, सो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो फर्स्टली इनपुट्स इज बेसिकली सिंपल इनपुट्स, जो भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं. तो पूरा जीएसटी को हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माय ट्रेनिंग एक्सपोजर एट जेटेक. सो दे आर बेसिकली सप्लायर ऑफ सोना
that the steerings and to the steering to the Maruti Suzuki. So ठीक है, so वो जो है ना, हम मारुति, मैं हूँ जेटेक में बैठी हूँ, राइट? तो जेटेक वाले ने ना स्टीयरिंग बना के देना है मारुति को, ठीक है? तो उनके लिए स्टीयरिंग बनाने के लिए एक उनको रॉ मटेरियल लगेगा. सो दिस इज अ रॉ मटेरियल, राइट? ठीक है, उनको रॉ मटेरियल लगेगा, तो जो भी रॉ मटेरियल उनको ये प्रोडक्ट स्टीयरिंग बनाने में लगेगा, दिस इज कॉल्ड एन इनपुट. ओके, तो ये हो गया इनपुट बनाने के लिए जो भी हमारे को लगेगा सामान, ठीक है? तो वो इनपुट हो गया, ठीक है? तो अब इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स होता है हम जो इनपुट्स पे टैक्स देते हैं. लाइक हम एक सेकंड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है, राइट? थर्ड पार्टी इज मारुति, सेकंड पार्टी इज जेटेक, फर्स्ट पार्टी इज द सप्लायर टू द जेटेक, राइट? ओके, जो भी मेरे सप्लायर्स होंगे, ठीक है? तो वो जो मुझे सप्लायर कर रहे हैं वो मेरे लिए सप्लायर्स होंगे बेसिकली, ठीक है? वो मेरे लिए सप्लायर्स होंगे और मैं सप्लायर होंगी मारुति के लिए, ठीक है? तो वो मेरे जो सप्लायर्स हैं वो मुझे इनपुट्स देंगे, तो वो मुझसे टैक्स चार्ज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स. ओके, तो वो जो बिल इनवॉइस देते हैं ना, तो हमने मोस्टली आजकल देखा है जब से जीएसटी लेवी हुआ बेसिकली, तो जीएसटी लगा होता है ना एट द रेट ऑफ दिस, एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है? तो वो जो जीएसटी हम अपने इनपुट्स पे देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स. ओके, so input tax की definition पहले पढ़ते हैं. In relation to the registered person means what is the basically what is registered person? Registered person means जो persons registered होते हैं under GST, ठीक है? अगर आप GST में registered नहीं हो then you can't avail the GST out input, ठीक है? तो GST में register होने के लिए भी एक threshold limit होती है. अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी देन यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू टेक द रजिस्ट्रेशन. या देयर आर सम एक्सेप्शंस दैट यू कैन टेक द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आल्सो. सो रजिस्टर्ड पर्सन होना इज अ मस्ट. ओके, सो एक एक वर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज बीइंग ट्रीटेड लाइक एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे पर्टिकुलर चीजें, ठीक है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा फर्स्टली, ठीक है? तो अब रजिस्टर्ड पर्सन, अब एक रजिस्टर्ड इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टैक्स एंड चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम एंड इंक्लूड्स, ठीक है? अब हमने अब यहाँ तक पढ़ा. अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस बेसिकली, CGST, SGST, IGST. ओके, तो CGST और SGST अभी आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और IGST इज बेसिकली विच इज बीइंग चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. मोटा मोटा ये समझ सकते हो. तो 3 टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं. थर्ड टैक्स इज IGST विच इज बेसिकली इक्वल टू दिस, दोनों को 2 को मिला के तो ये थर्ड वाला टैक्स बनता है, ठीक है? IGST लाइक कि अगर ये 99% है तो ये 18% होगा, ये 66% है तो ये 12% होगा. ओके, तो ये ऐसे टैक्स लगते हैं, ठीक है? तो अब हमने इसमें पढ़ा, यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है? एंड इंक्लूड्स IGST ऑन इम्पोर्ट्स. IGST ऑन इम्पोर्ट्स मींस क्या होता है? देखो, IGST ऑन इम्पोर्ट्स, हम जब चीजें बाहर से, हमने अगर मान लो रॉ मटेरियल वी हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, ओके, तो भी हमारे पे IGST लगता है, ठीक है? तो वो भी IGST का आपको इनपुट मिल जाएगा, ठीक है? तो अब इसके एक एक वर्ड मतलब काफी चीजों के पर्टिकुलर चीजों के एक अलग अलग पूरे पूरे चैप्टर हैं, तो वी विल स्टडी इट इन डिटेल, नो टू इश्यू, ठीक है? देन टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. कॉम्पोजिशन स्कीम का टैक्स का ITC कभी भी नहीं मिलता, इसका पूरा चैप्टर है कॉम्पोजिशन स्कीम. आप अभी के लिए ये समझ सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम बेसिकली जैसे कि एक रिड्यूस्ड टर्म पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है. लाइक कि आपने कुछ सरकार की चीजें मानी, सरकार ने आपकी कुछ चीजें मानी, लाइक कि आपने, सरकार ने आपको बोला कि आप कम टैक्स दे दो, इट्स ओके, राइट? बट वो पागल तो है नहीं, तो है ना, वो आपसे कुछ लिबरल चीजें करवाएंगे, मीन्स लाइक कि लिबरल टर्म्स पे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा. बेसिकली आपको टैक्स कम पर पे करना पड़ेगा, बट वो जैसे कि उनकी भी कुछ कंडीशंस है उसमें, ठीक है? उनकी उसमें कंडीशंस क्या है? लाइक कि यू आर नॉट required to pay the tax, right? Like you are not going to get the ITC. Okay, so this is their condition, one of the condition. Okay, so we will study it in detail. It is a full chapter. So basically input tax समझ लिया हमने. अभी हमने ये समझा input tax क्या होता है. Input tax is बेसिकली जो हम टैक्स ऑन इनपुट देते हैं, सिंपल, ठीक है? तो ये 3 टाइप्स ऑफ होते हैं जो गवर्नमेंट को हमने 2 तो एक होते हैं और एक एक होता है, ठीक है? ये चीज पढ़ ली, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर मैं बताऊं, ये मैंने ITC के ऊपर एक चार्ट बनाया है, ये देखो आप. अब ITC होता क्या है? देखो, टैक्स ऑन सेल्स बेसिकली एक होता है आउटपुट टैक्स, एक होता है इनपुट टैक्स. इनपुट टैक्स के ऊपर जो टैक्स दिया जाएगा वो होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट. आउटपुट पे जो टैक्स दिया जाएगा वो होता है आउटपुट GST, ठीक है? तो अब आउटपुट GST बेसिकली क्या होता है? अब मैं हूँ जेटेक, ठीक है? तो यहाँ पे है मारुति सुजुकी, ठीक है? अब मान लो मेरी स्टीयरिंग्स पैक हो गए, चलो जी, चलो पैक हो गए, ठीक है? अब हमने ये पैक करके हमने मारुति को दे दिया, मारुति को दे दिया. अब हमने मारुति को एक बिल बना के दिया होगा साथ में, ठीक है? उसके ऊपर हम GST चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ समथिंग, एट द रेट ऑफ समथिंग, आई थिंक इट इज 28%, राइट? सो इफ इट वुड बी 28% IGST अगर वो किसी और स्टेट में जा रहे हैं, लाइक कि
अगर आईजीएसटी होगा तो 28%, सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा तो 2 डिवाइड्स में होगा, ठीक है, 14% ओके। तो मतलब दोनों में से एक चीज लगेगी, या तो वो 2 पार्ट्स या फिर वो थर्ड वाला आईजीएसटी ओके। तो तीनों में से 2 या फिर आईजीएसटी ओके। तो ऐसे लगते होते, ठीक है, टैक्स। तो अब हमने ये चार्ज करके दे दिया बिल, ठीक है। अब हमने उनको भेज दिया बिल, ठीक है, वो होता है आउटपुट टैक्स। अब वो हमें पेमेंट देंगे तो वो हमें साथ में जीएसटी भी देंगे, ठीक है, जीएसटी दे दिया। अब हम ये जीएसटी सरकार को जमा कर देंगे, ठीक है। जो भी टैक्स देना होगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहे स्टेट गवर्नमेंट को देना है, वो हम देखेंगे कि कौन सा टैक्स लगाया जाएगा। वो हम पर्टिकुलर चैप्टर है हमारे पास प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा टैक्स कौन से केस में लगेगा, ठीक है। अब हमारा ये तो क्लियर हो गया आउटपुट जीएसटी क्या होता है, ठीक है। अब सेकंड इज, अब हम पढ़ेंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है। आउटपुट जीएसटी क्लियर, तो हमने उनसे टैक्स ले लिया। अब हम सरकार को देंगे। अब इसमें से हमने सरकार को सारा नहीं देना, इसमें से कुछ तो मेरी ही प्रोडक्ट के पैसे थे, लाइक स्टीयरिंग की, तो वो तो हम अपनी गुल्लक में रख लेंगे, वो तो मेरे पैसे हैं। जो बाकी वाले हैं ना, जो मैंने टैक्स लिया है ना, उनसे जो टैक्स लिया, वो उसमें से अब देखना है हमने कितना गवर्नमेंट को देना, तो उसमें से वो हमने इसको फर्स्ट चीज में पुट कर दिया, लाइक आउटपुट जीएसटी की फिलअप में पुट कर दिया, राइट। से दैट इट इज 1 लाख नियर अबाउट ओके, है ना। मैंने अपनी गुल्लक में अपने पैसे तो रख लिए, बाकी ये सरकार के पैसे मैंने 1 लाख इसमें डाल दिए ओके। चलो अब सेकंड, अब लेस इसमें क्या करेंगे, टैक्स ऑन परचेज। मैंने भी तो कभी ना कभी तो मेरे लिए भी तो कोई सप्लायर था ना कभी तो उसने भी तो मुझसे टैक्स लिया था ना, तो वो मेरे इनपुट टैक्स होंगे, ठीक है। वो हो सकते हैं परचेज के, एक्सपेंस के, मशीन के, ठीक है। दोज आर इनपुट जीएसटी, ठीक है, जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईटीसी, ठीक है। तो अब हम जो भी टैक्स, अब मैंने अपने थर्ड पार्टी को, मेरा सप्लायर, से दैट माय सप्लायर इज एबीसी, ठीक है। तो एबीसी इज माय सप्लायर, तो मैंने उसको कभी ना कभी टैक्स दिया होगा, से दैट 80,000 दिया होगा। अब तुम कहोगे कि 80,000 क्यों दिया, क्योंकि वो मेरे सप्लायर थे, तो अब मैंने कुछ वैल्यू एड ऑन की होगी, तभी मैंने आगे सप्लाई किया होगा। तो वैल्यू एड ऑन की होगी, ऑब्वियसली मैक्सिमम प्राइस पे प्रोडक्ट सप्लाई किया होगा, राइट की, है ना। तो मैंने तो इनसे रॉ मटेरियल खरीदे थे ना, तभी नियर अबाउट 80,000 भी नहीं, उससे भी कम टैक्स आएगा, लाइक से दैट 60,000, ठीक है। तो मैंने उनको 60,000 दिए थे उससे, ठीक है। तो ओवरऑल देख लेते हैं, ठीक है। तो उनको मैंने 60,000 दिए थे, ठीक है। तो वो 60,000, और मान लो कि कुछ, है ना, चलो अभी के लिए 60,000, ठीक है ना। तो अब वो 60,000 हम इनपुट जीएसटी में फिल कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर था 1 लाख, नीचे था 60,000, तो 1 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 40,000 ओके। तो 40,000, ठीक है। अब ये हमारा बन गया जीएसटी पेबल, बिकॉज आउटपुट इज मोर देन इनपुट ना, सो इट वुड बी जीएसटी पेबल। तो जो 40,000 बल्क में आ गया ना, हमारे पास बल्क में पड़ा, वो गवर्नमेंट का पैसा, तो उनको रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही ये रिवर्स केस भी हो सकता है, से दैट की इट इज जीएसटी क्रेडिट भी बन सकता है। जीएसटी क्रेडिट कैसे बन सकता है, अगर मैंने उनसे मान लो कि 80,000 चार्ज किया, राइट, ठीक है। तो मैंने उनसे अगर 80,000 चार्ज किया, बट वो मुझसे चार्ज करके बैठे हैं से दैट 1 लाख ओके। तो 80,000 ऊपर 1 लाख नीचे, तो मतलब हमारे पास आईटीसी ज्यादा है, ठीक है। 80,000 ऊपर 1 लाख नीचे, तो मतलब 20,000 का क्रेडिट हो गया। अब ये 20,000 का क्रेडिट वी विल एडजस्ट इन द नेक्स्ट मंथ। नो नीड टू वरी, ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको पैसे घर देने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका क्रेडिट आपके जीएसटी पोर्टल पे शो होगा, आप इसको नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर सकते हो ओके। सो इसी के ऊपर मैंने एक और चार्ट भी बनाया है, आप इसमें भी क्लियर हो सकता है ये चीज। ये देखो, अब इसको और डिटेल में समझते हैं, जैसे कि इफ आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट्स, डिफरेंस इज जीएसटी पेबल। जैसे कि मैंने अभी समझाया, आउटपुट इज ग्रेटर, इनपुट इज लोअर देन इट इज जीएसटी पेबल, ठीक है, सिंपल है ना। ये एक उसका फॉर्मूला हो गया। वी नीड टू पे जीएसटी चलान टू इज अ फॉर्म टू पे द टैक्स। टैक्स पे करने के लिए एक चलान इशू होता है, ये ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, एक चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक समझ लेते हैं कि एक चलान इशू होता है इसको पे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज जीएसटी क्रेडिट। जीएसटी क्रेडिट क्या होता है, इफ इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, डिफरेंस इज जीएसटी क्रेडिट। जैसे ऊपर पड़ा था इनपुट माइनस जीएसटी, नो नीड टू पे द जीएसटी चलान। तो जीएसटी चलान पे करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपका इस मंथ में आईटीसी ज्यादा है, तो आपको जीएसटी चलान इशू करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। What happened to GST credit and it will be issued to the next month. नेक्स्ट मंथ में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ओके डन, ठीक है ओके। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कंडीशंस। बेसिकली अब तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज आईटीसी, क्लियर हो गया कि क्या होता है आईटीसी, क्या होता है, व्हाट इज आईटीसी, ठीक है। सो व्हाट आर द कंडीशंस, बेसिकली दीज 4 कंडीशंस कंप्लाई विद कर दो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। व्हाट आर द 4 कंडीशंस, फर्स्ट इज सच पर्सन पोजेसेस टैक्स इनवॉइस। देखो, हमने, मेरा सप्लायर है एबीसी, ठीक है, उसने मुझे एक तो बिल भेजा होगा, ठीक है, वो संभाल के रखना। दूसरा, उसने मुझे गुड्स भेजे होंगे, वो मुझे मिले हुए होने चाहिए गुड्स, ओके। थर्ड, मैं उसको पेमेंट देके आई होंगी, वो पेमेंट उसने सरकार को, गवर्नमेंट को जरूर दे दी होनी चाहिए। अगर उसने वो पेमेंट उसको नहीं, गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो मैं कैसे उसका क्रेडिट ले लूंगी, ठीक है। मैं उसी चीज का तो क्रेडिट ले रही हूँ कि गवर्नमेंट तेरे पास मेरे पैसे आ चुके हैं, तो मैं उसको क्रेडिट लेने लगी हूँ। तो अगर वो गवर्नमेंट के पास ही नहीं पैसे आए, तो वो तो मिलेगी नहीं, ओके।
and the fourth one is return is furnished. ठीक है, we will study near about I think so 10-11 returns. okay, तो 11 returns I think, ठीक है, GSTR 11 तक होती है ना, तो उसमें से GSTR 1 2 3 बेसिकली रिलेटेड टू परचेज सेल एंड रिकंसिलिएशन. तो ठीक है, तो वो रिटर्न सबमिट करनी बहुत जरूरी है. अगर उसने रिटर्न सबमिट नहीं किया तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा मेरे रिलेटेड उसने इशू किया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे ऐसे परचेजेस होंगे ना, तो वो जो रिटर्न है उसी में तो इशू होगा ना कि मेरे रिलेटेड कितनी उसने ट्रांजेक्शन किए. ठीक है, तो दीज आर 4 कंडीशंस. वंस दीज 4 कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड यू विल गेट आईटीसी. और ये 4 कंडीशंस मस्ट 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 है, एक भी एक सिंगल कंडीशन भी पूरी नहीं. से दैट वी डोंट हैव बिल, वी है ना, बट वी रिसीव द गुड्स बट वी डोंट हैव बिल, वी विल नॉट गेट आईटीसी. ठीक है, से दैट वी डोंट हैव they don't have filed the return, we will not get ITC. So similarly these all conditions are cumulative to each other. This basically ठीक है. So thank you with this. Okay.